We'll be waiting for a couple of minutes. It's very important that everyone joins this meeting. And then we will begin. Hello, everyone. My name is Imtiaz Ahmed Sheikh. I'll be taking physics demo today. Okay, all right. Just few more minutes before we begin. What we'll do is initially, we will keep our mic closed. I will give you the opportunity to speak as and when required, but abhi ke liye we'll keep our mic closed. It's 1 o'clock, 2 minutes right now. I think by 1517, everybody should join. Okay, so these are a couple of slides that will give you a brief idea about the coaching. So I'll start a small kind of presentation from beginning. So we are IIT and Science Point. You can say this is the most advanced and affordable JEE NEET institute. When I say the word advanced, because the kind of quality strategy that we have and that we use in the preparation is what that makes us advanced. Affordable, why? Because we don't charge as high as other coachings in Mumbai. However, we give you the same kind of quality in here in Mira Bhayandar. So we prepare students for engineering and medical exams. We also prepare students for architecture, NDA, and merchant navy. So the company, the institute has got two directors, Harpreet sir and Imtiaz sir. So you can look at the profile. They all have amazing experience in their field as well as outside their field. For example, if you talk about me, then I'm not just a teacher. I teach physics undoubtedly, but I have also worked in corporates. I have worked in startups. I had been an active motivational speaker at various platforms. So I have a diverse experience, an experience that is going to, that really helps my student plan out a career. And hence the invitation mentioned that, my sessions usually end with, career talks. Harpreet sir, an exceptional, exceptional maths faculty from the JEE fraternity. Hello, ma'am. I'm live in a meeting right now. It started at 1. So once this ends, no issues, no issues. I'll give you a call once this ends. Thank you. Bye-bye. So Harpreet sir is an exceptional, maths teacher. And, when you study from him, and you might have already studied from him, you'll end up realizing how easy he can make mathematics. Jugendra sir, he's from NIT Allahabad. He has worked with Rao IIT, has gained experience. He's the organic chemistry expert. Akshay sir, NIT Jalandhar, again worked in Rao in past. He's the physical chemistry expert. And inorganic, the third part of chemistry is shared by Jugendra sir and Akshay sir.
Ravish sir is MSc in biotechnology. He is the botany expert in bio. The zoology expert is Dr. Rahul, who is an MBBS. I'm not mentioning Dr. Rahul's name because he's also associated with a government, medical college, and hence I cannot put him on the brochure. But yes, though that zoology will be taken by a doctor. Tasneem sir is basically from my same college. He's from IIT BHU, and he has been teaching physics for a while now. This is, the team that you're looking at is perhaps one of the most amazing team that you'll find in place called Mira Bhainder, because IIT Science Point is the only coaching in Mira Bhainder which has teachers coming rightly from IITs and NITs. You will not find any single coaching in Mira Bhainder where the teachers are from such reputed colleges. Now, what's the advantage of having a teacher from IIT and NIT? The advantage is that teacher is not just the subject teacher. The teacher is also motivation for you. You can actually get a feel and create a vision for getting into these top-notch colleges through your teacher. Why? Because your teacher comes from the same place. This is like, you plan to go to Paris in France, and someone has just returned from Paris, so you'll be asking him a question. Yeah, please tell me, Paris hota kaisa hai? How beautiful is it? Is Eiffel Tower really that big? How is the language? I've heard that Paris is very beautiful. The food is amazing. It's very romantic. People often go there, and everybody talks good about Paris. So that person has come from Paris. So that's the kind of correlation that you can develop, wherein these faculties these faculties are like a gateway for you to your dream colleges. These are the results that we have produced this year in JEE 2021. The third attempt results are out. I've not been able to put it up. However, the results are much better. Raghuveer is basically, a student of Saraswati Vidyalaya. He has got 99.11 percentile in JEE mains. Now, what does that mean? That Raghuveer is definitely going to NIT, and if he works really, really hard, he'll also go to IIT. Vikas, again from Saraswati, 99.05. Nakul is from SL Porwal, 98.06. This attempt, Nakul's score has shot up. Dinesh is from Saraswati. Jagdish is from Francis. Akash Gupta is from Nirmala Niketan, Bhainder West. Pratyush is from Pius Births. Himanshu is from Francis. Aarti is from Saraswati. Ramesh is from Saraswati. Viraj is from Amar Vidya Mandir. Arjun Pal is from Bhainder Secondary, which is a government school in Bhainder West. Bhavesh Tungaria, I think he's from Abhinav or Aloysius. I need to confirm that. I don't remember very well. Now, this is a quick recap from 2020 results that we had in 2020. There were many results. However, I would like to talk about these two people. Samriddhi Shukla, she was the topper of Queen Mary High School in Mira Road, Golden Nest somewhere. And she got a 95% score. She's joined us. She studied with us. She got a very good percentile in JEE 2020 to 97.56. And she also got a very good percentage in class 12, 93.5 percentage in PCM. And she's currently doing mechanical engineering from NIT Nagpur. Now, let me tell you, NIT Nagpur is again one of the best college in the country. And Samriddhi is very happy. She had been a very successful candidate that we had. So, the reason I'm putting this up is because if you study hard and if you do well, you will also end up having results, something like them or probably better than them, and end up reaching your dream college. Shubham Shukla. Shubham gave NEET with us. He scored 576 out of 720, and he secured a seat in Government Medical College in Nandurbar, MBBS. We started our coaching in 2018, so we are still growing. However, I can tell you very proudly that IIT and Science Point is one of the fastest result producing coaching in Mira Bhainder. 2018 and 2021, and we are flooded with results. We are not in Mira Bhainder from last 10-15 years, but 3 years, and we have given strong competition, and we have given strong results and proven our mettle. So we'll be very happy if you give us the opportunity to teach you and to mentor you for your dream college in science. Dharmaraj, I think your mic is open, beta. Hello, Dharmaraj. Ji sir. Yeah, your mic is open, beta. Are you my already student Dharmaraj? Because I also have a student called as Dharmaraj, or you are someone new?
धनराज, ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हो या फिर नए हो? नए डेमो सेशन है। न्यू सर। अरे पुराने स्टूडेंट हो बच्चा कि नए स्टूडेंट हो? नया स्टूडेंट हूँ सर। नए स्टूडेंट हो, ठीक है। माइक अभी बंद कर लो क्योंकि तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आ सकती है। मुझे सुनते रहो और बातचीत चलती रहेगी, पढ़ाई भी चलती रहेगी। Not just these two results, there were 14 students who cleared JEE main very first year. 2020 हमारा पहला साल था रिजल्ट का, 2018 में हमने शुरू किया था और बाय गॉड्स ग्रेस 2020 में ही हमने बहुत जबरदस्त रिजल्ट लाया और 2021 में और बेटर है। 2021 में जो हमारे नीट के स्टूडेंट्स हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग सम अमेजिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ देम बिकॉज दे हैव वर्कड really hard and they are doing amazingly well and we are trying to guide them as much as we can. Now the question is, why should you choose IIT and Science Point? You know what is so great about IIT and Science Point? First of all, the faculties. You will not find any faculty anywhere in Mira Bhayandar as amazing as the faculties of IIT and Science Point. Not just academics, beyond academics. You'll find me in the session. I talk a lot of things which are not just physics; they are beyond physics. They're about life. If you talk about our material, then the material that we provide you to learn is one of the finest, curated, one of the most amazing material that you'll have. They directly come from Kota to us. Kota is said to be the hub of preparation. We provide library to students so that they can find a place, they can find a peaceful atmosphere to study. We conduct, rigorous sessions, 6 to 7 hours of lectures every single day and 1 hour of doubt session. Why? Normally coachings take 3 to 4 hours of session. Every day we take 6 to 7 hours. Why? Because we know how important JEE NEET is. I don't understand how do people complete the syllabus in 3 to 4 hours when we take 6 to 7 hours, because किसी भी चीज की गहराई में जाने के लिए वक्त देना बहुत ज्यादा जरूरी है, which is what is our intention most of the time. हम बच्चों के doubts रोज लेते हैं. Every single day we conduct doubt session and you will find this if you ask your seniors. We have many other ways. I mean, I cannot talk about all the points because I need to teach you physics as well. But we provide personal counselor to every single student. हर student को एक counselor दिया जाता है. The advantage of having a counselor is तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, वो पर्सनल काउंसलर तुम्हारा पर्सनल लेवल पे हेल्प करेगा. तुम्हें कोई भी दिक्कत हो उसे बता दो, वो पर्सनल काउंसलर उसे अपनी एजेंडा बनाकर तुम्हारी प्रॉब्लम को 24 to 48 आवर्स में सॉल्व करके तुम्हें देगा, ताकि अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम छुपी ना रहे लॉकडाउन में, वो प्रॉब्लम उभर कर आए, पब्लिकली डिस्कस ना हो, बट तुम्हारे काउंसलर और टीचर के बीच में रहे और उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके. तुम्हारा काउंसलर तुम्हें ऑलमोस्ट हर 1-2 दिन में एक बार फोन करेगा और तुमसे बात करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्रिपरेशन में, बिकॉज कोचिंग को सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बच्चे के मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, ताकि वो प्रेशर ना फेस करे, वो डिस्ट्रैक्शन ना फेस करे, उसे कोई दिक्कत हो तो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके. Which is an amazing point about us. We have a very interesting as well as very technical Android application through which you can study in lockdown. Even after lockdown, we'll be using application for a lot of practice and papers. And genuine career talks, obviously we can talk about careers after this. Let's begin with our studies now. So what I'm going to do is I will now I'll take an open sheet. I am stopping the sharing, but I'm opening my notebook to start teaching you physics. Meanwhile, मैं चाहता हूं जब तक मैं अपनी कॉपी को ओपन कर रहा हूं, आप सभी लोग मुझसे एक दफे माइक ओपन करके अपना नाम बता दें और अपने स्कूल का नाम बता दें. Go ahead, alphabetically चले जाओ. तुम्हें लिस्ट में दिख रहा होगा अनिकेत ढुकाले is the first person that I see. तो पार्टिसिपेंट की लिस्ट खोल लो, तुम्हें अपना ऑर्डर पता चल जाएगा. Yes, sir. Start it. Aniket, starting with you, beta. Sir, my name is Aniket Dukre. I am from Nazareth. जोर से अनिकेत, जोर से, दम लगा के. Sir, my name is Aniket Dukre. I am from Nazareth. Okay, Aniket is from Nazareth. Okay, all right. Nazareth is a very, very amazing school. I've heard a lot about Nazareth, and the kind of discipline that you people have is something that I really admire. Next student. Go in the order. I think next is someone Arsh. चलो आप लोग अपना नाम यहाँ पर देखो मेरी स्क्रीन पे और मुझसे अपनी क्विकली अपना इंट्रोडक्शन दो. Sir, my name is Arsh Khan. I am from Our Lady of Nazareth High School. अच्छा अर्श, तुम भी नाजरत से ही हो?
Good. Welcome, Harsh. Now, what I want is, who's next in the list? I think, you can see the screen. Find your name, open your mic, introduce yourself. Harsh, beta mic band kar lo. Yes. Harsh के बाद कौन है? I think it's Avantika, ना? Avantika, you there? Yes, sir. My name is Avantika, थोड़ा जोर से. My name is Avantika Yadav, and I'm from Velankani School. You are from Our Lady of Velankani, Binder West, right? Yes. Okay, very nice. Someone by the name Pinky Sharma. Pinky, which school you're from? Pinky is not able to hear me. Asus X00TD, ये किसका नाम है? Who is Asus here? आप एक बार अपने नाम भी करेक्शन कर लो. ऐसा करो ना यार, बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप अपना पहला नाम लिखो, मतलब नेम लिखो, सरनेम लिखो, स्कूल का नाम लिख दो. फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज शेख सरस्वती, तो नेम सरनेम स्कूल का नाम. कैन यू डू दैट फॉर मी? सब लोग जो है, what you're supposed to do is, in the Zoom application, just change your name, make it very easy for me. Write your first name, last name, and the school that you come from. For example, Imtiaz Sheikh Nazrat, Imtiaz Sheikh Saraswati, Imtiaz Sheikh SVPV. Can you do that for me very quickly? Yes, Avantika has done it. That's Avantika Yadav from Velankani. Everybody, make it quick. Once you have done this, मुझे introduction की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, and I'll be able to talk to you on this, and I can directly enter the session. Girish Purohit is from SVPV. Okay, beautiful. Arsh, naam update karo. Meet Patel, naam update karo. Sathi is from Francis. Sameer is from Abhinav. We have Sneha Yadav from SVPV. All right. Ritik, update your name. Niloy, update your name completely. Tanish, Yash. Yeah, please update your name. Manish is from Aloysius. Anushka Shankar. Anushka, you need to also put your school ka name last mein. Aniket Dukhale Nazrat. Okay. Pinky Sharma is from SVPV. Anushka Shankar, you need to Hello. update your name. School name. Yeah, I'm pass out from DAV Noida. Acha. Okay, Anushka, I got to know from your sister. Yes. Okay. All right. So you're currently in Noida, Delhi? No, I'm in my hometown currently, but I did my studies from DAV Noida. DAV Noida. You completed your 10th from there, right? No 12th. I just came here to listen some career talk from you. My Okay, sister but advised Anushka, me. career talk will be at the last. So Yeah, you'll I have to have heard from you. starting I'll be teaching some physics to these students who are your juniors. So at the end, we are going to have some career talk. बहुत ज़्यादा physics नहीं पढ़ाऊंगा. Physics जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ाऊंगा. उसके बाद थोड़ा सा career की बात करेंगे. All right, Anushka. Okay, no. So have patience. Yeah, I'll have patience, or otherwise I will join the last half an hour. What you can do is, this session is until 3:30, right? So join at Yeah. 2:30. 2:30 Yeah, sharp. I'll do the same. I'll begin with this, right? Yeah. Okay, I'll All join. right, sure. Or in case if Thanks. you want, you can stay back. Huh? You can stay back. Not an issue. You can keep yourself mute and continue with the session. Yeah, sure. Okay. So we have all the students here. I know almost all of them. All right, let's begin. Let's study, some physics. Now, what I'm doing here is, I want you to understand that the science, though we had been studying for a long time now in school, and everybody said that science and mathematics is something very important. Now, why exactly science and maths is important is a big question. See, science and maths are important. The reason is that every profession that you're going to enter in your career will have some or the element of science or maths, most of them. And most importantly, every industry that we work, be it, computers, be it electronic industry, be it power supply, be it steel industry, be it any industry, सब industry के center और core पे ना science होता है. Because every industry has technology at the center. Let's, for example, just to make you understand, आप में से कितने लोगों ने let's say टेस्ला का नाम सुना है?
let's talk about Tesla. कितने लोगों ने टेस्ला का नाम सुना? आजकल बहुत बवाल है टेस्ला, everybody is talking about Tesla. कितनों ने सुना है? सर मैंने तुमने Sir, सुना है मैंने- और किसने सुना है? Sir, I Okay. I So also- most of the very nice. Most of the students have heard about Tesla. Now मुझे एक बात बताना, Tesla is a giant company. It's $1 billion company. What is the most important part of Tesla? Is it the technology or is it Engineering. other aspects? Yes, sir. It's the technology, right? yes Because sir. Tesla is able to make cars which are technologically so advanced that the cars can avoid accidents because it's replacing humans with robots. It's making use of artificial intelligence. It's reducing pollution because of electrifying the whole process, right? And Yes, sir. it's bringing a lot of comfort in the whole travel. Now the thing is, you love Tesla because the kind of car Tesla produces. Now the production of car has got technology into it and it has science. So technically you love science. So indirectly, किसी भी profession में हम जाए, we'll have a very strong inclination and attraction towards science. And hence, indirectly हमें बोला गया था ज़माने से that science and maths are going to be very, very important. Now, when you talk about science, the vertical will be two, engineering and medical. Here, there are many other verticals. So you'll have architecture, which is connected to engineering. You'll have NDA, again, little connected to engineering. You'll have architecture, again, little, merchant navy, again, little connected to engineering. Then you'll have pharmacy, which is connected to medical. So broadly, science will be divided into two verticals, which is PCM vertical called as engineering and others, and PCB vertical, which is called as medical and others. Now, in order to study these courses, you will have to give an entrance exam, because most of the amazing colleges in India, the reputed colleges, the dream colleges for all the students in India, have their own entrance exam. That certainly means कि आपको अपना merit, अपना metal proof करना है, तब जाकर के आप इन amazing colleges पहुंच पाएंगे. So वो colleges में पहुंचने के लिए जिस entrance exam को दिया जाता है, उस entrance exam को popularly लोग जानते हैं JEE और NEET के नाम से. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Now, JEE is called as the joint entrance exam, which is for admission to technical aspect, which is engineering, and NEET is called as National Eligibility Cum Entrance Test, which is for admission to the medical vertical, to become a doctor. Now, the question is, why are these examinations so different? Why are these examinations different? इसमें क्या ऐसी चीज की जरूरत होती है कि लोग इस एग्जामिनेशन के जरिए एडमिशन लेना चाहते हैं? सिर्फ 12th पे एडमिशन क्यों नहीं होता? The most important aspect in these kind of examination that the colleges are looking for, that the companies are looking for, is called as critical thinking. They want you to think. They want you to stop rote learning, stop, muggifying things. They want you to think. So in the beginning, I will be taking certain concepts and I will make you understand how critical thinking works. So one of the example is, let's begin with one example, which is called as the concept of infinity. Now, infinity has a symbol like this. Have you seen this, Kabhi? Yes, sir. Yes, sir. और infinity, आपने अभी तक जो infinity पढ़ा था, उसको आप बोलते थे not defined. ऐसे बोलते थे ना? Yes, sir. कैसे बोला करते थे? Yes, sir. Anything upon zero. हम कैसे पढ़ते थे इसको? Anything upon zero. जिसको हम बोलते थे not defined और जो होता था infinity. But हम एक चीज यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते थे, हमने infinity को not defined बोल दिया. But let me tell you, फिजिक्स के और साइंटिफिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंफिनिटी ही सॉल्व करता है. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स, जिसको हमने बचपन में अनडिफाइंड बोल दिया था, वही अनडिफाइंड कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल कर लाएगा, उसको डिफाइन करो. एंड इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी, आई वांट टू पुट अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू. And what that problem is,
But before I put up a problem, I want to ask you something. Tell me, area of, what is this? What do you see? ये क्या है? Rectangle. Rectangle. That's the length and that's the breadth. Can you please tell me the formula? Length into breadth. L into B. L into B, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Everyone, right? सब लोग बताओ मुझे, चार्ट में लिख कर भेज दो, मतलब ठीक है, चार्ट में क्या ही लिखना है, ये तो सबको ही पता रहता है, that area of rectangle is length into breadth. चलो बहुत अच्छी बात है तो. Now, I have the next question जो इसके continuity में आता है, and that is called as this, area of, चलो कोई ये बता दे मुझे. What is this? What do you see? What do you see here? Sorry. What figure is this? It's a circle, right? Yes, sir. Pi r square. What is the area of circle? Somebody said. What is the area of circle? Pi r square. Pi r Okay, the area of circle is pi r square. Everyone agrees with me? किसी को कोई doubt तो नहीं? Yes, sir. Somebody has a different formula for this क्या? No, sir. All of you agree with me, right? Yes, sir. Okay, बहुत बढ़िया. Now, my question here is that everybody said that the area of circle is pi r square. My question is why and how? जिन्होंने मेरा ये सेशन ऑलरेडी अटेंड किया है पास्ट में, वो लोग उसका जवाब नहीं देंगे. आई रिपीट, जिन्होंने मेरा सेशन ऑलरेडी पास्ट में अटेंड किया है, वो लोग इसका जवाब नहीं देंगे. जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, वो लोग जवाब देंगे, तब जाकर के उनको वो इंटरेस्ट पैदा होगा. सो माय क्वेश्चन इज, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. व्हाई एंड हाउ हमने पढ़ तो लिया, हमने याद कर लिया, हमें टीचर ने बता दिया, बट आज मैं सवाल करना चाहता हूं, क्यों है और कैसे है. आई स्टार्ट माय क्वेश्चन विद अनिकेत डुकाले. अनिकेत, टेल मी. कुछ भी लॉजिक चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि तुमको सही चीज बोलनी है, गलत भी बोल दोगे तो चलेगा. अनिकेत, ट्राई इट आउट बेटा. एक लाइन में समझाने की कोशिश करो कि व्हाई इज एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. अनिकेत, माइक ओपन करो. अनिकेत, अनिकेत. चलो, माय क्वेश्चन गोज टू अर्श. अर्श, Yes, माइक sir. ओपन करो. हाँ, Yes, sir. वन लाइनर में समझाने की कोशिश करो, सही गलत से फर्क नहीं पड़ता. व्हाई डू यू थिंक एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर? अर्श, कुछ भी लॉजिक चलेगा, सही गलत से फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करना है अपने को. Yes, sir. कैसे भी बोल दो चलेगा, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कुछ भी बोलना है बोलो, पर बताओ. नहीं भी पता तो चलेगा, बोल दो सर नहीं मालूम. कम ऑन अर्श. अर्श, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ, तो ट्राई करो जल्दी से, 30 सेकेंड्स. कुछ भी लॉजिक दे दो, इफ नॉट पास कर दो, किसी और को पूछता हूँ. Sir, pass, sir. अर्श ने क्वेश्चन पास कर दिया है. नाउ माय क्वेश्चन गोज टू अवंतिका वेलंकनी. अवंतिका, गिव इट अ शॉट. बताओ, ट्राई करो, बोलो क्यों एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर था. I don't know. जोर से. I don't know. तुम्हें भी नहीं पता? कोई बात नहीं, इट्स ओके. So, Avantika couldn't answer. My question passes on to Girish Purohit. Girish, open your mic, try it out. Sir, no idea. Girish has not been able to answer this. कोई दिक्कत नहीं, अगर आंसर नहीं आ रहा तो बुरा नहीं मानना है.
हम सिर्फ सोच रहे हैं कौन कर सकता है कैसे आंसर. हितिका सावंत फ्रांसिस. हितिका, try it out बेटा. Quickly. Leon Lobo, get ready with an answer. Hitika, you there? Hitika Savan. Hitika has not been able to answer this. We have got Leon. Leon, open your mic. Leon Lobo, please open your mic, beta. Am I audible? लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Okay, great. Leon, open your mic, beta. Leon cannot hear me, I suppose. Meet Patel. Meet Patel, try it out. See if your answer is, if you don't know, it's fine. It's okay. Meet Patel. Come on. Okay. Let me pass on the questions to Vaibhav. Vaibhav Upur. Come on, Vaibhav. Give it a shot. I can see Indigo. Shravani. Shravani from St. Paul's. Yes, sir. Beta, give it a shot. Sir, it is related to height of a circle, like It is related to length, height or length. It should be related to that. height or length. Height or length of what, beta? Okay. Means radius is, what I'm trying So you to mean say to is the say that diameter. you are trying to represent radius in terms of height or length? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and then what? How do we come arrive to pi r square? चलो कोई बात नहीं, इतना भी ट्राई किया. Yes, Shravani. No, I'm just thinking. Okay, you are just thinking, not an issue. चलिए कोई बात नहीं. So now most of you have tried. It's time that I take you somewhere and I tell you कि मेरा thought process इसमें क्या है. Excuse me, sir. In order, हाँ बेटा बोलो. Sir, can I try? एक सेकंड रुको. No, Manish Dubey, no, not the existing student, because the existing student has an idea. Okay. I want the new students who are facing me for the first time. So Manish, not you at this point of time. हाँ. मेरा भी first lecture है. अच्छा, तुमने ये वाला सेशन कभी नहीं देखा है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं. मनीष बताओ, व्हाट्स योर थॉट? सर वो जो पाई होता है वो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर का रेशियो होता है, और जो एक मिनट. यस सर. ओके. तो सर जो ये जो सरकमफरेंस मतलब जो ये पाई होता है वो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर का रेशियो होता है, और सर अगर डायमीटर आर इंटू आर, सर रेडियस आर स्क्वायर होता है. तो रेडियस इंटू रेडियस तो आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद यस सर. तो जो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल है वो 2 पाई टाइम्स रेडियस है सर. मतलब 2 पाई टाइम्स मतलब इंटू रेडियस सरकमफरेंस ऑफ सर्कल होता है. ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कैसे पहुंचे? कोई बात नहीं, तुमने बहुत क्लोज हो तुम. सोचो ना. सर हाँ बेटा, कौन बोल रहा है? should I एक try? सेकंड. भारद्वाज, पहले देखा है या फिर फर्स्ट टाइम है? नो सर, फर्स्ट टाइम है कि देखा है? फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम है. ठीक है, ट्राई कर ले. आफ्टर यू आई विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग माय Sir. रीजनिंग. सर जैसे कि हाँ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमने देखा, वो मतलब दो साइड को मल्टीप्लाई करके हमने उसका एरिया निकाला. वैसे ही अगर हम आधे सर्कल के मतलब ये जो जितने भी साइड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो पाई आर स्क्वायर आ सकता है सर. जैसे कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है और उसमें दो रेडियस है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा. वेरी क्लोज. अभी तक का सबसे क्लोज आंसर. बट यस,
यश तुमने जो चीज बताई है मैं उसको एक जस्टिफिकेशन देने जा रहा हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में, इन माय लैंग्वेज. Now, in order to understand this, I will have to make you understand a concept called as the Pisa theory. Now, Pisa theory आपको कोई किताब में नहीं दिखाई देगी, ये मैंने अपने मन से Pisa theory इसका नाम रखा है. The reason is कि in this particular explanation, you will be taking the example of Pisa to understand. And let's begin with. Let's say this is a circle that you have got. A circle of radius r. What I'm doing is I'm cutting this circle into 4 equal parts, where this is part 1, this is part 2, this is part 3, this is part 4. मैं इन parts को naming भी कर दे रहा हूँ so that we have a better understanding. So मैंने इन parts को naming कर दिया है. This is part 2 and this is part 4. इस तरह से shading कर दिया. अब इन 4 हिस्सों को मैंने separate किया और उनको मैंने एक दूसरे से connect कर दिया. कैसे कनेक्ट किया देखना. दिस इज द फर्स्ट वाला हिस्सा, दिस इज द सेकंड वाला हिस्सा, दिस इज द थर्ड वाला हिस्सा एंड दिस इज द फोर्थ वाला हिस्सा. लेट मी मार्क इट. सेकंड वाला हिस्सा शेडेड था और फोर्थ वाला भी शेडेड था. नाउ ये सबको इमेजिन हुआ? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, सबको समझ में आई चीज? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अच्छा, कैन यू नो, तुम्हें ये पता है ना ये रेडियस होता है? दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस. Radius. और ध्यान से देखना, ये जो है ये पूरा क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है बेटा. Yes. So can I say Yes, sir. वो येलो जो मैंने मार्क किया है वो येलो एक्चुअली ये बन चुका है. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सरकमफेरेंस बेटा कितना होता है? 2 पाई r होता है ना. Yes, sir. तो यदि सरकमफेरेंस 2 पाई r होगा तो ये लंबाई ऐसे, ये कितना हो जाएगी लंबाई? दिस इज गोइंग टू बी पाई r ना, आधा. हाँ, sir. Yes. Yes, sir. You all agree with me? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया. नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं सेम पिज्जा को 4 पार्ट में नहीं 8 पार्ट में बांट रहा हूं. 8. इसको मैं 8 पार्ट्स में कट करने वाला हूं. 4 पार्ट में कट गया, 8 पार्ट्स में कट गया. अग्री? और Yes, sir. अब इसको मैं नेमिंग, इसको मैं थोड़ा सा शेडिंग कर दे रहा हूं. ये एक शेड हो गया, दूसरा शेड हो गया, तीसरा शेड हो गया, चौथा शेड हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू रीअरेंज ऑल दिस. अब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. 2, 5वां, 6, 7, 8. सो अब ये 8 हिस्सों में कट गया है. Now, if you look at this again, obviously by measurement you will say that this is again radius and this is now again pi r. Now जब मैंने उसको 4 पार्ट्स से 8 पार्ट्स में कन्वर्ट किया, जब उसको मैंने 4 पार्ट्स से 8 पार्ट्स में कन्वर्ट किया, यहां पर 2 चीजें हुई, 2 फेनोमेना हुआ. फर्स्ट, ये जो रेडियस वाला लाइन था वो थोड़ा सा वर्टिकल होने लगा है. दिख रहा है सबको? वो सीधा होने लगा है. Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा जो पाई आर वाला लाइन था वो थोड़ा सा फ्लैट होने लगा है. पहले कर्वी लीनियर था, अब कितना फ्लैट होने लगा है. दिख रहा है सबको? हाँ, sir. Yes, sir. Yes. This is where I want everybody's comment कि ये चीज कितनों को समझी है. You will go to the chat box and you will write your comment. Go to the chat box. मुझे कमेंट लिख करके बताओ कि तुम्हें ये पॉइंट समझ में आया है कि नहीं आया है. Start commenting. I'm looking at your comment now. Comment to everyone करना, text to everyone. शुरू हो जाओ. Yes, text to everyone. जब मैंने 4 पार्ट से उसको 8 पार्ट में कन्वर्ट किया तो उस केस में the radius वाला end became more verticular and
the curvy linear end became more flat. It became flatter. So ये transition जिसको समझ में आया वो लिखेगा yes I have understood. जिसको नहीं समझ में आया वो लिखेगा I haven't understood. क्योंकि जिसको नहीं समझा मैं उसको दोबारा समझाऊंगा अच्छे से. Go ahead, make it quick. Chat पे respond करना जरूरी है because if you don't respond on chat, it becomes difficult for me to understand. Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Okay, go ahead. All right, all right. Do it, do it. Come on, come on, come on. Everybody will answer. Nobody will skip the chat. Now I'm opening the chat box here. I want everyone to answer. Nobody should miss it. 27 responses आने चाहिए इसमें. कितने? 27 responses आने चाहिए. नाम लेके पूछना शुरू करता हूं. ज़ैनब, ज़ैनब कमेंट करो. ज़ैनब ने कमेंट नहीं किया. Webber good that you've commented. विनीत दलवी तुमने भी कमेंट किया है कि नहीं? चेक करो. तनिष देशपांडे, तनिष फादर जोसेफ, तनिष नाररकर, स्नेहा यादव, स्नेहा मंडल, श्रावणी फ्रॉम सेंट पॉल्स, शिवम प्लीज कमेंट. ओके, ज़ैनब समझ में आ गया. ज़ैनब को ही समझ में आ गया. ऋतिक फ्रॉम अभिनव विद्या मंदिर, रानी यादव फ्रॉम क्वींस मैरी, मीत पटेल प्लीज कमेंट. ग्रेट. हितिका सावंत फ्रॉम फ्रांसिस, कमेंट बेटा. लियोन लोबो प्लीज कमेंट. It's important that you answer. Participation is very, very important in every session. Girish Purohit, Dinesh, Bhavesh, Avantika, Valenkani, Arsh Khan, Aniket. Quickly comment. Good. किसका बाकी अभी कमेंट आना? I think Leon तुम्हारा कमेंट नहीं आ रहा है. Leon Lobo. Yes. Okay, so most of you have commented. It's very, very important that you comment. Your question का आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. All right. चलिए. Now, after having understood this, let me take you to another level. तो एक चीज हमने यहाँ पर समझा है कि भाई हम अपने सर्कल को 4 से 8 पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. अगर हम अपने सर्कल को 4 से 8 पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो R वर्टिकल होता जा रहा है और जो पाई आर है वो फ्लैटर होता जा रहा है. इमेजिन इस चीज को थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे ले जाकर के सोचना कि अगर मैं अपने सर्कल को इनफाइनाइट पार्ट में काट दूं, इनफाइनाइट गिनती नहीं है, काटे जा रहा हूं, गिनती नहीं है, बस मैंने अपने सर्कल को इनफाइनाइट पार्ट में काट दिया और सबको ला करके अगर मैं वापस अरेंज कर दूं, देन आई विल सी समथिंग लाइक दिस हैपनिंग. I will see something like this, that this will become vertical and this will become flat. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. सर ये पूरा फ्लैट हो जाएगा. Absolutely ना, infinite part में convert कर दिया ना, तो कोई रोक ही नहीं है. किए ही जा रहे हो, फ्लैट होता जा रहा है. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या बन जाएगा? कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना, पूरी तरह फ्लैट हो गया तो. हाँ सर, बराबर. And if that happens, you're smart enough to tell me कि इसका एरिया क्या होता है? Length into breadth, which is IR square. Clear हुआ सबको? यस सर. Yes, sir. So Yes, it is the concept of infinity जिसका इस्तेमाल करके हमने इसको प्रूव किया. It is the concept. अभी क्या किया था मैंने? यहां से यहां इसको इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक किया. यानी कि मैं एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू तब प्रूव कर पाया हूं जब मैंने अपने पूरे प्रोसेस को इंफिनिटी पे लेकर के गया. तो तुम बताओ, इंफिनिटी ने इस प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया कि नॉट डिफाइन कर दिया? डिफाइन किया. It is because of the concept of infinity we are able to find a solution to a given problem that you had no idea about. Now imagine अगर infinity नहीं होता तो क्या तुम solution निकाल पाते? The answer is no. No, sir. So that's how important infinity was.
अब इस पूरे प्रोसेस में तुमने क्या देखा? क्या तुमने इस पूरे प्रोसेस में एक क्रिटिकल थिंकिंग देखी? ऐसा देखा तुमने कि कितना क्रिएटिवली सोच सकते हैं हम लोग, कैसे अलग अलग तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, थियरी से बाहर निकल के किस तरह से हम अपना लॉजिक पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? डिड यू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. This is called as the science of JEE, NEET, architecture, pilot, Navy, Air Force, Merchant Navy, and so on. हमें इस तरह का माइंडसेट डेवलप करना है, और इस कोर्स में we will help you develop this kind of mindset only. Can I move forward? Yes, आगे sir. बढ़े? Okay. Now किसी को कोई भी डाउट है? Anybody having any doubt? जिसको भी डाउट है वो प्लीज कमेंट में आकर लिख दे डाउट सर, डाउट है सर, या फिर कुछ भी ऐसा मेंशन करे जिससे मुझे समझ में आ जाए कि तुम्हें डाउट, और जो भी डाउट है मैं उसको क्लियर करके दूंगा. In next 30 seconds, if you have any doubt, you will mention it in the chat box and I will respond to that doubt. Go ahead. Quickly. In the next 30 seconds, if you have any doubt, you will mention in the chat box and I will respond to those doubts. All right, I see no one has any doubt. Things are very clear to you. We will take a step forward. Now, somebody told about pi. So even I want to tell you what pi is, but in a different language. So let me tell you the origin of pi. The origin of pi. आखिर ये pi कहां से originate होता है? Let's try to understand that. So we have a circle. इस सर्कल के केस में हमें सबसे पहले डायमीटर को मेजर करना है. तो तुमको नहीं लगता कि मैं डायमीटर को दो ऑपोजिट पॉइंट पकड़ लूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और इन दोनों के बीच में स्केल से डायमीटर को मेजर कर सकता हूं? And it can be measured through a scale or a ruler. Do you get that? Tell me. Yes, sir. देखो रेडियस मेजर करना मुश्किल है, Yes. क्योंकि रेडियस के लिए बच्चा बीच का सेंटर चाहिए, और तुमको पता है सर्कल का सेंटर डिफाइन करना बहुत मुश्किल है. अगर मैं तुम्हारे हाथ में एक सर्कल दे दूं तो तुम क्या पेन से सेंटर ऐसे ही मार्क कर दोगे, गलती हो जाएगी? Obvious, sir. गलती हो जाएगी. ऑब्वियसली गलती हो जाएगी. So, यानी कि सेंटर नहीं मार्क कर पाए तो क्या रेडियस तुम मेजर कर सकते हो? अगर मैं तुम्हें सर्कल ऐसा एक सर्कुलर डिस्क उठा के दे दूं, बोलूं बताओ रेडियस क्या है, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सेंटर ही नहीं पता चल रहा. बट क्या तुम डायमीटर मेजर कर सकते हो? दो एक्सट्रीम पॉइंट से रूलर लेकर के डिस्टेंस निकाल लेना. Isn't that possible? Yes, sir. Okay. Now, दूसरी चीज हम क्या मेजर कर सकते हैं सर्कल में? दूसरी चीज जो हम मेजर कर सकते हैं सर्कल में वो ये है कि हम इसका सर्कमफेरेंस मेजर कर सकते हैं. कैसे समझना? सर्कमफेरेंस मेजर करने का तरीका बड़ा सिंपल है. मैं जो है यहां से एक रस्सी पकड़ के घुमा दूंगा ऐसे इसके ऊपर यहां तक, और उस रस्सी को खोल करके सीधा कर दूंगा. रस्सी घुमाने का तो रस्सी को खोल करके सीधा कर दूंगा, और फिर से मैं रूलर लेकर आऊंगा और बोलूंगा कि ये क्या हो गया मेरा सर्कमफेरेंस. अग्री? तो सर्कमफेरेंस प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगेन Yes, sir. यूजिंग अ थ्रेड एंड रूलर, और थ्रेड और रूलर का इस्तेमाल करके मैंने सर्कमफेरेंस भी मेजर कर लिया. नाउ this experiment is performed multiple times. So this experiment was performed multiple times.
from smaller to larger or bigger circles. छोटे से लेकर के बड़े सर्कल तक मैंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और हर बार मैं एक रेशियो निकालता गया. I was trying to take a ratio. I was trying to take the ratio of circumference upon diameter. मैं बार बार circumference upon diameter का रेशियो निकालता गया. And I found that surprisingly हर बार this ratio was found to be constant. अब मेरे दिमाग में सवाल है, अरे यार सर्कल बड़ा कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, हर टाइम पे रेशियो कांस्टेंट आ रहा है. What does that mean? That this ratio is technically a number which doesn't change. Are we good? Yes, sir. Yes, sir. And mathematically वो रेशियो की वैल्यू निकल कर आती थी 22/7. मैथमेटिकली उस रेशियो की वैल्यू निकल कर आती थी 22/7 और उसको हमने एक लैटिन या ग्रीक सिंबल दे दिया और उसको बोला कि भाई आज से इसको बोलेंगे पाई. क्या बोलेंगे इसको आज से? पाई. तो पाई एक सिंबल दे दिया और वहां से डिफाइन हो गया that pi is equal to 22/7, which is nothing but the ratio of circumference upon diameter. और ये रिलेशनशिप भी वहां से डेवलप हो गई, which was that circumference is equal to pi times diameter. Diameter is equal to 2r, so circumference is equal to 2 pi r. ये क्लियर हुआ सबको? Yes. This pi value is approximated as 3.14. It doesn't stop, it keeps going on, but 3.14 लेकर के भी हम सॉल्व करते हैं. Are we good? Yes, sir. Yes. So quickly look at the origin of pi and comment in the chat box if you have understood what I am trying to tell you. If you have understood what I am trying to tell you, then amazing, nothing like it. सब लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे और चैट का रिस्पॉन्ड करेंगे, बताएंगे कि उनको कितना समझा. नहीं समझा तो नहीं समझा, समझ गया तो अच्छी बात है. If you have understood, just write understood, sir. Now, do me a favor. ये चार्ट में मैं तुम्हें अटेंडेंस का लिंक भेज रहा हूं. इट्स अ गूगल फॉर्म विच विल बी एन अटेंडेंस लिंक. इसको जरा भर दो प्लीज सारे बच्चे. देखो सब लोग को गूगल फॉर्म मिला. अच्छा अभी रुको, अभी तुम रेस्पॉन्ड करना बंद करो. पहले तुम रेस्पॉन्ड करना बंद कर दो और ये मेरा सारा फॉर्म भर दो. सब लोग फॉर्म मिला सब लोग को? हेलो, यू गॉट द फॉर्म इन द Yes, चैट sir. बॉक्स? वो लिंक क्लिकेबल है ना? Yes. ओके. हितिका सावंत को नहीं समझा है. गुड हितिका, मैं तुम्हें बताता हूं अभी. बट अभी के लिए फॉर्म भर दो प्लीज, बिकॉज व्हेन यू क्लिक ऑन दिस फॉर्म इट विल आस्क फॉर सम बेसिक इंफॉर्मेशन. कुछ इस तरह का ये फॉर्म खुलेगा. इसके थ्रू आई विल बी टेकिंग योर अटेंडेंस सो दैट आई नो हु अटेंडेड माय सेशन. सो एक काम करो, आप अपना सबसे पहले तो यहाँ पर नाम लिख दो. नाम कैसे लिखोगे? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. जैसे इम्तियाज अहमद शेख, अपने स्कूल का नाम लिख दो. लेट्स से नाजरत है कि फ्रांसिस है कि एसपीपी है. प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हारा वो होगा जिसपे तुम्हें कभी हम फोन पे बात कर सकते हैं अगर मुझे तुमसे बात करना हो तो. व्हाट्सएप रहेगा तो और अच्छी बात है, कनेक्ट करना आसान होगा. यहाँ पर आज का डेट डाल दो. आज की तारीख 7 है, सीधा सीधा डाल दो. लेक्चर कौन सा अटेंड किया? फिजिक्स किया. किस फैकल्टी का है? इम्तियाज सर का है. और सबमिट. Sir, how to select date in this?
ये देखना, ये देख, ऐसे सेलेक्ट कर, इस पे क्लिक कर, इस पे क्लिक कर, ये खुलेगा और 7 पे क्लिक कर दे, सेट कर दे, ऐसे हो गया। कर दिया? सर चलिए, सब क्लिक लोग कर रहा बताइए, हूँ सब पर लोग ने उसमें लिखा हुआ कर नहीं है। दिया? क्या हो बेटा? सर उसपे 7 पे क्लिक तो किया पर वो इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा है इस पे। सर उसके फोन में गूगल हाँ, कैलेंडर्स नहीं रहेगा। तो गूगल कैलेंडर का जरूरत नहीं है ना, ये तो वेब ब्राउजर पे भी खुल जाता है। ये वेब ब्राउजर पे भी खुल जाता है। एक काम करेगा, वो लिंक को है ना क्रोम के ब्राउजर में जाकर के कॉपी पेस्ट कर दे, जैसे मैंने भी क्रोम में ही खोला है। यस सर। हाँ, वहां से कर ले। कर 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, फटाफट फॉर्म भर लो सब लोग, फिर आगे की पढ़ाई करते हैं। यस सर। कोई भी फॉर्म स्किप नहीं करेगा। द रीजन इज कि अगर तुम साइंस में इंटरेस्टेड हो और तुम ज्वाइन करना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, 1-to-1 काउंसलिंग कराना चाहते हो, डिस्कशन चाहते हो करियर से रिलेटेड, तो ये फॉर्म ही एक जरिया है जिसके जरिए हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे, राइट? सो डोंट मिस दिस फॉर्म, भर दो। तुम में से जो लोग मुझे फेसबुक पे कनेक्ट करना चाहते हैं, दे कैन आल्सो कनेक्ट मी ऑन फेसबुक। This is how my profile looks like. Imtiaz Ahmed Sheikh. You can connect me on Facebook here. Facebook is an amazing way to connect because Facebook पे एक बार दोस्ती हो जाती है तो वो कभी टूटती नहीं है। WhatsApp वाली भी टूट जाती है, फोन वाली भी टूट जाती है, बट Facebook वाली हमेशा बरकरार रहती है। So यहाँ पर तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। If you write IMZZYS ना, this IMZZYS, so उससे भी you will be able to connect. Now that's about my profile, Tata Steel, Avanti and many others. ठीक है। Now लेट मी गो बैक। सबने फॉर्म भर दिया है? तुम लोग फॉर्म भर रहे थे तो मैं तुम्हारा थोड़ा टाइम पास करा रहा था, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म भर दिया होगा दूसरे का वेट करते करते बोर होते। चलो मुझे एक बार कंफर्म करो, जैनब तुमने फॉर्म भरा? यस। ठीक है। यश तो अपना ही स्टूडेंट है। बाहर का जो बच्चा आया हुआ है, मॉन्डल, स्नेहा मॉन्डल, यस सर। तुम तो मेरी स्टूडेंट हो, तुम्हारे भूल गया मैं। फॉर्म भर दिया ना? यस सर भरा। श्रावणी? यस सर। ठीक है। अनिकेत डुकाले फॉर्म भर दिया? सर ओके। अनिकेत फॉर्म भरा ना बेटा? ओके। अर्श खान फॉर्म भर दिया? अर्श फॉर्म भर दिया बेटा? नो सर। फॉर्म भर देना बेटा फटाफट। यस सर। अभी भर दे, 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट का तो काम है। अवंतिका यादव वेलिंगकनी फॉर्म भर दिया? यस सर। ठीक है। हेतिका, हेतिका सावंत फ्रांसिस? Yes, sir. गुड। गिरीश पुरोहित सरदार वल्लभ भाई पटेल? यस सर भर दिया। लियोन लोबो नाजरत? यस सर। लियोन लोबो नाजरत फॉर्म भर दिया? यस सर कर दिया सर। ठीक है। रानी यादव क्वींस मैरी? Yes, sir. रोहित, रोहित अपना नाम पूरा लिखो, तुम आई थिंक अभिनव वाले हो ना? यस सर। हाँ, फॉर्म भर दो, अपना नाम पूरा लिखो, पहचानने में मुश्किल हो रहा है वरना। चलो मोर और लेस मैंने सबने ही फॉर्म भर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। अर्श फॉर्म भर दिया? अभी इतना टाइम मिल गया था। अर्श खान फॉर्म भर दिया? ऑल राइट। अब हम थोड़ा सा एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, एंड दैट टॉपिक इज द मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक ऑफ फिजिक्स। अभी तक जो मैंने तुमको पढ़ाया ना वो फिजिक्स नहीं थी,
that was the fundamental of सर भर JEE दिया मैंने recruitment. फॉर्म। Okay, ठीक है। Now सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, सब लोग, do I have everyone's attention? मैं तुम्हें अभी एक केस स्टडी बोलने जा रहा हूँ। जिन बच्चों ने मेरा ये लेक्चर पहले देखा है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है, तो वो आंसर कर सकते हैं। बट जो पहली बार बैठ रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए सवाल है। डू आई हैव एवरीवन्स अटेंशन? यस Yes, सर। sir. ओके, सो ध्यान से सुनना, केस सिनारियो क्या है। द केस सिनारियो इज, मेरा एक फ्रेंड है, हिज नेम इज अकरम, माय चड्डी बड्डी यार बचपन से। वी हैव द सेम बर्थ डेट, वी कम फ्रॉम द सेम होम टाउन एंड we look not exactly similar. He's smarter than me. Now Akram has gone to US. तो हमारी फोन पे ही बात होती रहती है एंड 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो कभी कभी बात नहीं भी हो पाती। सो वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड एक सिचुएशन है, ये संडे का दिन है। अचानक क्या होता है कि संडे की सुबह, मैं ऑब्वियसली बात है संडे को सब लोग रेस्ट करते हैं, मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ और लेट उठूंगा क्योंकि पूरे हफ्ते भर की थकान है। ऐसी नींद में था सुबह सुबह और फोन आता है और मैं फोन उठाता हूँ एंड आई एम लाइक हेलो। सो वहां से अकरम बोलता है कि भाई क्या कर रहा है? तो मैं उससे बोलता हूँ कौन बोल रहा है भाई? बोलता है अबे अकरम बोल रहा हूँ। मैंने बोला हाँ बोलना यार, तेरे यहाँ पे रात हो रही है, यहाँ पर सुबह फोन रख दे। ही इज लाइक कि क्या बात कर रहा है, क्यों फोन रख दूं, मैं बॉम्बे आया हुआ हूँ, मिलते हैं। एंड आई एम कंप्लीटली शॉक्ड। बोलता क्या, तो मुंबई आया हुआ है? एंड आई ऑल्सो गेट एक्साइटेड। बोलते हैं तो अकरम बोलता है मुझसे कि यार मैं मुंबई एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ एंड आई एम जस्ट एग्जिटिंग द एयरपोर्ट, चल जल्दी मिलते हैं। मैंने बोला हाँ हाँ तू एक काम कर, जल्दी मिलते हैं, ज्यादा नहीं, मुंबई एयरपोर्ट से मेरा घर सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे, तू जल्दी से आ जा। और मैं नींद में ही रहता हूँ और मैं फोन रख देता हूँ। एंड ऑफ केस स्टडी। सबने सुना? यस सर। Yes. यस। Now my question is, will Akram be able to meet me? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है, yes या no. My question is, will Akram be able to meet me? Start answering, write down in the comment box in yes or no. जितनी इंफॉर्मेशन मैंने तुमको दी है उतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही तुम्हें आंसर करना है। जितनी इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी है उतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुम्हें आंसर करना है। Will Akram be able to meet me? That's the question. Everyone will answer. See, the answer is either yes or no. So whatever you think is the best answer, give it. I'll take the name. Aniket Dukale, Arsh Khan, फटाफट आंसर करो। अवंतिका आंसर करो, आई थिंक भावेश ने आंसर कर दिया ऑलरेडी। गिरीश, हितिका, लियोन आंसर करो। रानी ने आंसर कर दिया। ऋतिक, रोहित, समीर ने आंसर कर दिया है। श्रवनी आंसर करो, कर दिया आंसर। मॉन्डल का आंसर आया क्या? स्नेहा मॉन्डल आंसर करो। Quickly. I want everybody to answer. Sneha Mondal, Sneha Yadav, you both have not answered. Arsh Khan, you have not answered. Quick. Quickly. Okay. So there is one person who has said yes, और बाकी सबने बोला है ना। गिरीश पुरोहित ने भी बोला yes. So I want Girish Purohit to open your mic. Yes sir. Girish, mic open करो. Now, since देखो तुम्हारा आंसर लोगों के कंपैरिजन में अलग है, now that is special, और ऐसा होना भी चाहिए था. Tell me कि तुमने बोला yes अकरम मुझसे मिल पाएगा. Now try giving this explanation कि कैसे. सर वो एयरपोर्ट पे तो ये है और आप तो बचपन से ही दोस्त हो अकरम के, तो उसे तो आपका एड्रेस तो पता ही रहेगा घर का, तो आराम से वो कैब वगैरह कुछ भी करके आ सकता है। वेरी प्रैक्टिकल। लेकिन जब मैंने तुमसे केस स्टडी की बात की तो मैंने जितनी इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ उसके बेसिस पे आंसर दो।
क्योंकि तुम उसके पहले का अजम्पशन लगा रहे हो। मैंने अपनी केस स्टडी में कभी बोला ही नहीं कि अकरम को मेरा एड्रेस पता है। क्या पता मेरा घर बदल गया हो, वो तो बेचारा 2-3 सालों से यूएस में है। हाँ सर, बराबर तो चांसेस। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बताओ यस और नो। फिर तो सर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ओके, व्हाट अबाउट रानी यादव? Yes, sir. हाँ, तुमने यस बोला था। व्हाट्स योर एक्सप्लेनेशन टू दैट? He's your close friend, then he will meet you because I think he's your good friend. नहीं, दोस्ती तुम्हारी अच्छी, बात झगड़ा भी नहीं हुआ था, मिलने तो आएगा। बट जितनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने दिया था, उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में तुम्हें लग रहा है वो मुझसे मिल पाएगा? द क्वेश्चन इज क्या मिल पाएगा? मिलना तो चाहता है। मिल पाएगा। ओके, द आंसर इज नो एंड आई विल टेल यू हाउ। देखो, सी दिस इज अकरम। मैंने अकरम से बोला दैट आई एम 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम यू। सो क्या मैं 30 किलोमीटर दूर, ये ईस्ट का डायरेक्शन है, ईस्ट में है क्या इम्तियाज 30 किलोमीटर दूर? या इम्तियाज 30 किलोमीटर दूर नॉर्थ की डायरेक्शन में है? क्या इम्तियाज 30 किलोमीटर दूर वेस्ट की डायरेक्शन में है? या क्या इम्तियाज 30 किलोमीटर दूर साउथ की डायरेक्शन में है? टेक्निकली मैंने बोला मैं 30 किलोमीटर दूर हूँ एयरपोर्ट से, इसका मतलब मैं 30 किलोमीटर के इस सर्कल के सर्कमफरेंस पे कहीं भी मिल सकता हूँ, है ना? बिकॉज सारे के सारे मेरे पॉइंट को जस्टिफाई कर देते हैं। यस सर। सो अकरम को क्या नहीं बताया मैंने कि वो मुझसे नहीं मिल पाएगा? एड्रेस। आपका एड्रेस। एड्रेस। बट इस फिजिक्स के टर्म्स में यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा? व्हाट इज दैट थिंग जो मैंने अकरम को नहीं बताया? डायरेक्शन। डायरेक्शन। द डायरेक्शन, द पॉइंट इज 30 किलोमीटर कहां? अगर मैं अकरम को बोलता कि भाई 30 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, अगर मैं उसको बोलता 30 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो अकरम नॉर्थ ईस्ट यहां पर आता और मुझसे मिल लेता, राइट? अभी मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं। सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई हैवंट टोल्ड हिम अबाउट, एंड दैट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डायरेक्शन। एंड इस वजह से वो मुझसे नहीं मिल पाएगा। तो यहां से हमने क्या लर्निंग डेवलप की है? यहां से हमने कुछ नया जाना है, और वो नई चीज ये है कि देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज that requires direction as well to be completely defined. क्लियर हुआ सबको? कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डायरेक्शन की जरूरत है, वरना वो पूरी तरह डिफाइंड नहीं है। डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. They are called vectors. इसको हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो ये जो चैप्टर हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर्स। ये वेक्टर चैप्टर हो गया। यानी कि हमें आज ये पता चला कि भाई फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिसमें अगर डायरेक्शन के बारे में जानकारी ना दी जाए तो आप उस क्वांटिटी के बारे में नहीं पूरी तरह समझ सकते। चलो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर्स बोलेंगे। बट एक नया सवाल उठकर आता है कि सर ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ये तो फिर से नया सुन लिया। कभी वर्ड सुना था फिजिकल क्वांटिटी? चलो, तुम सब लोग, तुम में से जो नए बच्चे हैं वो लोग अपनी तरफ से कोशिश करें और मेरे को बताएं फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? भाई सुना तो होगा, लिख के बताओ। राइट टू एवरीवन, सबको लिखना, डायरेक्ट मत लिखना, सीधा एवरीवन लिख दो। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? इतना समझ में आ गया कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स में जो आने वाली है, जिसको समझने के लिए डायरेक्शन की जानकारी जरूरी है, और एक हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लिया है। लेकिन भाई ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है?
बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दो सब, जो तुम्हारी समझ में आता है। सर वो एक्सेलरेशन वगैरह वो रहता है ना फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वगैरह, ठीक है। चलो मैं 5 लोगों को मौका देता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने का, नए बच्चे नहीं, पुराने बच्चों में से। जैनब बोलती है प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ओके ओके। मनीष सेज उन चीजों जिसको मेजर किया जा सकता है। ओके। हितिका क्या बताएगी? फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है हितिका? श्रावणी, फिजिकल क्वांटिटी बेटा क्या हो सकता है? श्रावणी ट्राई करो, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है बताओ। अनिकेत, चलो तुम बताओ फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकते हैं? सर्टेन टर्म्स। ओके, ठीक है। अनिकेत डुकाले, बोलो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? क्विकली, कम ऑन अनिकेत, ट्राई इट आउट। अनिकेत बोल रहा है मेजरिंग सर्टेन टर्म्स, एग्जैक्टली श्रावणी वाला ही आंसर है। ये रोहित शर्मा, समीर तुंगारिया बोलता है क्वांटिटीज दैट कैन बी अप्लाइड ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर्स। ओके, रोहित शर्मा योर टर्न। रोहित टू एवरीवन करके लिखना, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एनी काइंड ऑफ कंपाउंड इट कैन बी मेजर्ड विद सम मास अमाउंट ऑफ, वेरी नाइस। चलो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज आर। रोहित ने बहुत ही क्लोज आंसर दिया है। फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? सो फिजिकल क्वांटिटी इज physical quantity, any quantity that can be measured। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। व्हेन आई से मेजर्ड, जिसको नापा तौला जा सकता है, ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के थ्रू। मास कैन बी measured in kg। अग्री? मास को किलो में मापा जा सकता है ना? Yes. 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, sir. 50 किलो। लेंथ कैन बी measured in let's say meters। कितना लंबा है? 3 मीटर। कितना छोटा है? 1 ही सेंटीमीटर है। मेजर किया जा सकता है? यस सर। यस सर। यस सर। तो मास और लेंथ क्या हो गए? फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि इनको मेजर किया जा सकता है। बट दैट ब्रिंग मी अगेन टू अ क्वेश्चन व्हेयर आई आस्क यू, कैन हैप्पीनेस बी मेजर्ड? क्या खुशी को आप मेजर कर सकते हो? नो सर। No, sir. कैन यू गिव नंबर एंड यूनिट्स टू हैप्पीनेस? नो। I want everyone to answer. Can happiness be measured? Can sorrow be measured? Can beauty be measured? Can pain be नो measured? सर। The answer is no. These quantities cannot be measured. It certainly tells me that happiness, or I'll say emotions, are not a physical quantity because it cannot be measured. In fact, for your information, emotions are basically abstract quantities. Abstract यानी unmeasurable. ये फील किया जा सकता है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, सबको समझ में आया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? यस सर। यस सर। एवरीबॉडी, सब लोग समझ गए इस बात को? Yes, sir. यस सर। ब्यूटीफुल। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछे। आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स।
All right. Any question, any doubt, anything that you have not understood? Please tell me. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. गिरीश को कोई डाउट नहीं है. What about others? बाकी सब भी क्लियर हैं? Okay. All right. All right. All right. So अब जो है फिजिकल क्वांटिटीज की मैं डेफिनेशन आपको समझा देता हूं कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या हो. फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली दो वर्टिकल्स में डिवाइड होते हैं. उन दोनों वर्टिकल को डिवाइड करने से पहले उनके बीच में मैं एक दीवार लगा देता हूं. दो वर्टिकल्स क्या होंगे? लेट मी टेक अप स्ट्रेट लाइन. मिडिल में आ गई. अब थोड़ा मिडिल में. ऑलराइट. सो अब उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो वर्टिकल में डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट वर्टिकल विल बी कॉल्ड एज वेक्टर्स and the second vertical will be called as scalars. Now vectors क्या है? We will go strictly by definition. We will go strictly by definition. तो पहले definition लिखेंगे फिर उसको समझेंगे. Vectors की definition है the physical quantities that requires both magnitude and direction to be completely defined, that requires both magnitude and direction to be completely defined and follows the law of vector addition are called as vectors. एक एक करके समझाता हूं. यानी वो फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से देखना, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको समझने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी, और जो फिजिकल क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा उसको बोलेंगे वेक्टर्स. क्या ये सबके दिमाग में बैठ गया? Yes, sir. Scalars. The physical quantities that can be completely defined using magnitude only and does not require direction are called as scalars. वो क्वांटिटीज जिसको पूरी तरह डिफाइन किया जा सकता है सिर्फ मैग्नीट्यूड के जरिए, जिसे जरूरत नहीं है डायरेक्शन की समझने के लिए, उसे हम बोलेंगे स्केलर्स. क्या आपको दोनों की डेफिनेशन समझ में आई? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ध्यान से देखो. वेक्टर्स कौन सी? वो फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें पूरी तरह समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी. और स्केलर कौन होगा? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसे समझने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है. बट दैट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन कि ये मैग्नीट्यूड होता क्या है भाई? व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड दैट सर इज टॉकिंग अबाउट? सो मैं तुम्हें समझाता हूं मैग्नीट्यूड का मायना क्या है. व्हेन यू से मैग्नीट्यूड,
तो मैग्नीट्यूड का मतलब बड़ा सिंपल है, मैग्नीट्यूड पूछता है कितना है। मैग्नीट्यूड क्या सवाल पूछता है, कितना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, दिनेश वर्मा तुम्हारा वेट कितना है? सर 56 kg। 56 kg। सो दिनेश वर्मा ने बोला उसका वेट 56 kg है। यानी देख रहे हो, तुमने कितना पूछा तो दिनेश ने सवाल का जवाब दिया, सर 56 kg है। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। गिरीश पुरोहित तुम्हारे डिवीजन में कितने बच्चे थे? 53। 73। गिरीश पुरोहित के डिवीजन में कितने बच्चे थे? 73। कितना? वेदिका त्रिपाठी तुम्हारे घर में कितने परिवार वाले लोग हैं, मतलब तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? 3 लोग रहते हैं। तुम देख रहे हो, द मोमेंट आई यूज द वर्ड कितना, कितने, कितना, आई ऑलवेज गेट अ वैल्यू, राइट? तो जब भी Yes, मैं sir. सवाल पूछ रहा हूं, इट रिटर्न्स अ वैल्यू। अब समझ में आया मैग्नीट्यूड होता क्या है? Yes. वो किस सवाल का जवाब देता है? वो इस सवाल का जवाब देता है कि कितना है। एंड द सेकेंड थिंग इज डायरेक्शन। डायरेक्शन किस सवाल का जवाब देता है? किस दिशा में है, कितना है और किस दिशा में है। ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, सामने है, पीछे है, लेफ्ट में है, राइट में है, ऊपर है, नीचे है। लॉजिक समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. अब मैग्नीट्यूड को फर्दर समझाने के लिए 2 चीजें होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अंदाजन बताओ अभी टेम्परेचर कितना हो सकता है? अंदाजन बताओ बाहर टेम्परेचर कितना होगा? तुक्का मारो, अरे बचपन से कुछ तो पढ़े हो। 29, 22 degree Celsius. 29 क्या? degree 28 degrees Celsius. डिग्री 31 सेल्सियस। ओके, चलो कोई बात नहीं। दिनेश ने अपना 33 वेट बोला था 56 kg। ठीक है। अच्छा, कोई मेरे को यहां से बताए कि यहां से पुणे पहुंचने में कितना समय लगता होगा कार में, अंदाजन? 5 घंटे। 5 5 घंटे। ओके। कोई मेरे को ये बताए कि मुंबई और चर्च गेट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, मतलब एकदम डिस्टेंस, यानी कि वो आड़े टेढ़े रोड का डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, सीधा डिस्टेंस बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन वाला। अंदाजन बताओ। सर किसमें? अच्छा, कभी चर्च गेट नहीं गए हो क्या? Sir, 70 kilometers. 70 किलोमीटर तो रोड का डिस्टेंस बताया। रेलवे लाइन का अगर डिस्टेंस देखेगा तो 55 किलोमीटर है। ठीक है। Yes, sir. नाउ द पॉइंट इज, व्हाइल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, तुम देख रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर एक वैल्यू देते हो और यहाँ पर तुम मुझे एक यूनिट देते हो। Yes, sir. ठीक है। तो हम जब भी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, देन मैग्नीट्यूड इज बेसिकली डिस्क्राइब्ड यूजिंग not just one thing but 2, which is it should talk about a value, it should talk about a unit. Are we clear on this part? Yes. Yes, sir. Yes, sir. All right. Now my further extension is जो मैं अगले सेशन में कंटिन्यू करने वाला हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है, ये डेमो सेशन था, तो मेरा अगला सेशन वही बच्चे बैठेंगे जो एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि अगले सेशन में मैं प्रॉपरली पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ये तो सिर्फ उन बच्चों के लिए था जिसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे जानना था कि भाई इम्तियाज सर फिजिक्स कैसा पढ़ाते हैं, या आई10 साइंस पॉइंट में टीचर्स कैसा पढ़ाते। सो यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पर तुम्हें मुझे एग्जांपल्स लिख करके देना होगा। तुमने जाकर के देखना होगा भाई फिजिक्स में कौन कौन सी क्वांटिटीज है फिजिकल, और उनमें से कौन कौन सी स्केलर में जाएगी और कौन कौन सी वेक्टर में जाएगी, और तुम्हें उस एग्जाम्पल को यहाँ पर लिखना होगा। आज के लिए मैं तुम्हें इतना ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन एज आई कमिटेड यू कि भाई आई विल बी टॉकिंग अबाउट करियर काउंसलिंग एज वेल। सो करियर क्या होता है साइंस में, उसके बारे में आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, बट बिफोर आई हेड टुवर्ड्स दैट, आई वांट यू टू आस्क यू कि ये चीज जो अभी मैंने तुमको पढ़ाया, ये जो पेज पे तुम देख सकते हो, क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. Yes. Yes, sir.
किसी को अगर कोई भी Yes. डाउट है तो प्लीज हैव द लिबर्टी, ओपन योर माइक एंड आस्क द क्वेश्चन. क्विकली, कुछ भी डाउट है, ओपन योर माइक, आस्क द क्वेश्चन. So, हाँ बेटा. so law of vector addition मतलब Yes. Now that was something interesting. Good that Shravani you pointed out. अब जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये लॉ भी फॉलो करना जरूरी है. तो अगर कोई कहता है कि भाई फलानी चीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो क्या वो ये वेक्टर है? प्राइमरीली लोग बोल देंगे वेक्टर है, लेकिन वेक्टर को वेक्टर साबित होने के लिए एक लॉ को फॉलो करना जरूरी है, एंड दैट लॉ इज लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन, जो कि मैं अगले सेशन में पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि उसके लिए पूरी गेम बदल जाएगी, उसके लिए एक अलग अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा. क्लियर? यानी वेक्टर में दो कंडीशंस है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, उसको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना है. क्लियर है श्रावणी? अब वो क्या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो अगले सेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? अच्छा, यहाँ जो नए बच्चे आए हैं, आई सी कि कुछ कुछ बच्चे नए ज्वाइन किए हैं. सो वो नए बच्चे सबसे पहले तो मुझे अपना अटेंडेंस दे दें, ताकि फ्यूचर में हम कभी कनेक्ट हो पाए. सो मैं मैसेज में एक लिंक डाल रहा हूं बेटा, इसको भर के तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओ. ये फॉर्म है अटेंडेंस का. जैसे मैं देख पा रहा हूँ जिशान एक नया बच्चा ज्वाइन किया है, शहजान 54 करके एक नया बच्चा ज्वाइन किया है. जिशान, शहजान प्लीज इस फॉर्म को भर दो. एंड आई सी बस यही दो बच्चे हैं जो नए ज्वाइन किए हैं, अभी मिडल में ज्वाइन किए हैं. तो जिशान एंड शहजान, क्या आप इस फॉर्म को भर देंगे प्लीज? एटलीस्ट ओपन योर माइक, टेल मी कौन सी स्कूल से हो. जिशान कौन सी स्कूल से हो? जिशान, हेलो जिशान. हेलो सर. हाँ जिशान. नहीं, मेरा सहजान 54 है ना, मेरा भाई है ना, इसके लिए इसको देखने के लिए करा मैंने. अच्छा ठीक है, तो तुम शहजान हो, शहजान 54 है. कौन सी स्कूल से हो? मैं जिशान बोल रहा हूँ. मेरे सहजान मेरा बड़ा भाई है. अच्छा, तो शहजान कहाँ पर है? मतलब तुम इस समय 10th से बाहर निकले हो ना? नहीं, मैं फोर्थ में पढ़ता हूँ मैं. तुम 4th में पढ़ते हो? हाँ. तो तुम मेरे सेशन में क्या कर रहे हो? नहीं, मेरा भाई ट्यूशन में ना, तो हाँ. मैं देख रहा था पढ़ने बैठा के नहीं. अच्छा, तो बेसिक, अरे क्या बात है यार, क्या बात है, तुम लोग देख रहे हो. इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि 16 साल का शहजान ने लेक्चर ज्वाइन किया है कि नहीं, वो 4th स्टैंडर्ड में कितना होगा, 7-8 साल का जिशान चेक करने आया. जिशान मम्मी ने भेजा है क्या? नहीं यार तुम बड़ा हिसाब किताब रखते हो यार. शहजान माइक ओपन करो. भाई, माइक चालू कर. जिशान देख, शहजान माइक ओपन नहीं कर रहा है, ये बता देना ठीक है घर पे. सर वो ट्यूशन में अभी. ट्यूशन से बैठ रहे हैं यहाँ का लेक्चर? हाँ, चलो नहीं ये तो और ट्यूशन इंटरेस्टिंग बात है. वो ट्यूशन क्या ना 1 बजे है, तो इसका माइक बंद है, पढ़ा रहे ना वो देखेंगे. अच्छा ठीक है, चल कोई बात नहीं. देन इन दैट केस आप जो है माइक अपना क्लोज कर लो. अभी Yes, मैं sir. आपके ऊपर के लेवल की चीज सिखाने जा रहा हूँ, तो अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. यस. हाँ, माइक बंद कर लो. ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट करियर काउंसलिंग. बिगिनिंग विथ, राइट, करियर काउंसलिंग में हम क्या चीजें करने वाले. सी पॉइंट नंबर 1. अच्छा, कैन आई अज्यूम दैट ऑल ऑफ यू इन माय सेशन, द स्टूडेंट्स हु आर न्यू, हु अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया वो प्लान कर रहा है, कैन आई अज्यूम दैट ऑल ऑफ यू आर टेकिंग साइंस? yes sir. यस सर. है ना? गिरीश पुरोहित, yes you're taking science. अवंतिका यादव, you're taking science. हितिका सावंत, you're taking science बेटा. श्रावणी, you're taking science. तुमसे तो बात हुई गई है मेरी पहले भी. रोहित is taking science. रोहित मुझसे मिल चुका है. हितिका कंफर्म करो साइंस ले रही हो. मॉन्डल, स्नेहा मॉन्डल,
You also confirm साइंस ले रही हो क्या? Yes, sir. I think स्नेहा मॉडल से तो मिल ही चुका हूँ. Zainab, you're also taking science? Yes, sir. ठीक है, ठीक है. Now देखो, सबसे पहली चीज, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे, 1 सेकेंड, हाँ, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे साइंस ले रहे हैं. मैं कॉमर्स की कंपैरिजन नहीं करने वाला बिकॉज इतना वक्त मेरे पास नहीं है और आई एम नॉट अ कॉमर्स एक्सपर्ट, बट यस आई कैन टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट साइंस. बट बिफोर आई टेल यू दैट, आई होप आप मेरे बारे में ऑलरेडी जानते होंगे बिकॉज द इन्विटेशन व्हिच वाज रोल्ड आउट इन डिफरेंट ग्रुप्स, वो इन्विटेशन में मेरे बारे में लिखा हुआ था, राइट? आई होप यू नो मी. तुमने मेरे बारे में पढ़ा है, बैकग्राउंड वगैरह जानते हो? यस सर. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, सबसे पहली चीज, साइंस इज वन फील्ड जहां पर तनिष 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 Yes, sir. फादर जोसेफ, माइक बंद रखो, आवाज आ रही है. नाउ साइंस इज वन फील्ड जहां पर मेहनत है, जहां पढ़ना पड़ेगा, लेकिन साइंस में रिटर्न्स जो है काफी ज्यादा है, क्योंकि साइंस बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है, हर एंगल में खुलता है, हर पॉसिबिलिटीज तुम्हारे सामने लेकर आ जाता है. एंड अगर तुम मेरे ब्रोशर का पहला पेज देखोगे, अगर तुम मेरे ब्रोशर का पहला पेज देखोगे, आई होप तुमने वो ब्रोशर का पहला पेज देखा है कि नहीं देखा, बट आई एम ओपनिंग दिस फॉर यू. आई होप वो दिखाई दे बस. नहीं, आई थिंक ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, बट मैं तुम्हें दिखाता. तुमने अगर मेरे ब्रोशर का पहला पेज देखोगे तो उस पहले पेज का स्टेटमेंट है, Did you know that 44% of the CEO of the Fortune 500 companies are science majors? यानी कि लगभग अगर 100 कंपनीज की बात करूं तो उसमें से 44 कंपनी के ओनर्स या फिर उसके कर्ता धर्ता, the CEOs are coming from science background. The question is why? The point is science is directly connected to industry. It is the core of the industry. It is the center of the industry, be it medical or be it engineering. दो मेजर वर्टिकल साइंस में खुलेंगे. The first will be called as the technical vertical, which is driven by PCM. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Second is called as medical vertical, which is driven by PCB. टेक्निकल की भी अगर आप बात करेंगे और फर्दर एक्सटेंशन लेने की कोशिश करेंगे, then you will have, सबसे पॉपुलर in this is going to be engineering. The second most popular choice is usually architecture. The third popular choice that you will see in this, that I have been seeing, is National Defense Academy. The fourth popular choice is to become a pilot, CPL, commercial pilot license. And the fifth popular choice that I've seen is Merchant Navy. There are many others, agriculture वगैरह भी है, but मैं popular choices की बात कर रहा हूँ. इसमें सबसे ज्यादा तैयारियां इंजीनियरिंग के दिशा में होती है, because obviously बात है relatively demand ज्यादा है. But does that make कि architecture के बच्चे नहीं होते? No, we have architecture students, we have NDA students, we have pilot students, we have merchant navy students. But yes, dominance is by engineering. इतना clear हुआ सबको? Yes. Yes sir. Yes, sir. Now, medical में you have got again two verticals. One is that you become a doctor. There are others as well. मैं major की बात कर रहा हूँ. दूसरा होता है pharmacy. And doctor में भी multiple verticals आने वाले हैं. अगर आप डॉक्टर की भी बात करेंगे तो, but this field is basically, medical का field is basically dominated by doctors वाला, because you know being a doctor is something that every science student who likes biology wants to take. Doctors में various verticals क्या आ सकते हैं? Doctor में you can you can be an MBBS, you can be a BMS, you can be BHMS. Let me move this a little, running short of space.
you will have Bachelor of Physiotherapy, you can do BDS, right? There will be people who will end up doing nursing. And pharmacy में तुम्हारे पास दो एंगल खुलता है, that is D Pharm and B Pharm. D Pharm, B Pharm क्या होता है सब समझाऊंगा. Now, एक एक तरीके से बताता हूँ engineering होती क्या है. Now, when I particularly talk about engineering, so engineering is, simple definition of engineering is application of science and technology to solve a real life problem. जब भी आप टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी रियल लाइफ समस्या का सॉल्यूशन निकालते हैं, इस फिनोमेना, इस प्रोसेस को इंजीनियरिंग बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपको जो है, मतलब आज से 100 साल पहले चले जाओ, 150 साल 200 साल से पहले चले जाओ, लोग, तभी कोई कार्स नहीं होती थी, तभी कोई प्लेन्स नहीं थे, देयर वाज नो ट्रेन्स एट ऑल. What was there was people used to travel by carts. They used to be traveling on animals. Nobody imagined that they'll be traveling across the globe. Nobody did that. यानी कि travel was a major concern आज से 200 साल पहले. But somebody thought कि physics का एक concept है called as thermodynamics, जिससे engine बनाई जा सकती है. Engine क्या करेगा? Engine जो है fuel को mechanical energy में convert करेगा. फिजिक्स में एक और कॉन्सेप्ट है काइनेमैटिक्स, उसके जरिए उस मैकेनिकल एनर्जी से एक व्हील को ड्राइव किया जा सकता है, जो व्हील के घूमने से जो भी सामान है, जो चीज है, जो मटेरियल है, वो आगे की दिशा में बढ़ने लगेगी. क्यों बढ़ने लगेगी? क्योंकि फ्रिक्शन का इस्तेमाल होगा. क्या कभी तुम एकदम परफेक्टली स्मूथ सरफेस पर, बर्फ का सरफेस या एकदम साबुन वाले सरफेस पे गाड़ी चला पाओगे? No, sir. No, sir. No, sir. The answer is no. Yani somebody thought that thermodynamics along with kinematics, along with friction, kuch banaya ja sakta hai. And they came out with the concept of engines and cars and vehicles. And the problem was solved. And today we live in an era jahan par Tesla jaisi gaadiyon ki baat chal rahi hai. This phenomena was called as engineering. कौन सी engineering थी? Mechanical and automobile. इसी को आप electrical में लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी में लगाओ, इसी को आप गैजेट्स में लगा दो तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इसी को आप जमीन में से मेटल निकालने में लगा दो तो माइनिंग इंजीनियरिंग है, इसी को अगर आप फ्यूल के अंदर लगा दो तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, इसी को अगर आप कोडिंग या कंप्यूटर के जरिए किसी मसले को आसान करना, ऐप बनाना, डेवलपमेंट करने में लगा दो तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है. सो इंजीनियरिंग की डेफिनेशन सबको क्लिक हुई? Yes, sir. Yes, sir. So engineering is a profession which is in great demand. See, I've worked in industry, I have worked in corporates, I have worked in startups, and I'm currently an academician. I have seen engineers का बोलबाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी डिमांड होती है. हर इंडस्ट्री में इंजीनियर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है. बस अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. टॉम डिक एंड हैरी वाली कॉलेज से नहीं, अच्छी कॉलेज से करना है. आर्किटेक्चर क्या होता है? ना, आर्किटेक्चर इज कोई भी कंस्ट्रक्शन, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो फ्लाईओवर है, चाहे वो ब्रिज है, चाहे वो रेलवे ट्रैक है, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे वो शिपिंग का ये है या एरोप्लेन का हैंगर है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होने से पहले उस कंस्ट्रक्शन को इमेजिन किया जाता है और उसको स्केच करके डिजाइन किया जाता है. आज से कई सालों पहले वो स्केच एक कागज पे होता था, पेन के जरिए और पेंसिल्स के जरिए. आज वही चीज सॉफ्टवेयर के जरिए होती है. बट यस, इमेजिनेशन को स्केच किया जाता है दो एंगल को ध्यान में रखते हुए. एक, खूबसूरती, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप खूबसूरत बनाओगे तभी तो दुनिया को अच्छी लगेगी. दूसरा, वो चीज टेक्निकली खड़ी रह पाए. मुझे एक बात बताओ, कोई भी फ्लाईओवर अगर बना है तो उस फ्लाईओवर में फ्लाईओवर के खिलाफ सबसे बड़ा डर क्या है? गिरना नहीं चाहिए वो. सर नीचे गिरने का. क्या सबसे बड़ा?
कम ऑन टेल मी, ओपन योर माइक, टेल मी, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के बाद उसका सबसे बड़ा डर क्या होता है? कोई भी फ्लाईओवर के साथ सबसे बड़ा डर क्या है? कोई भी ब्रिज के साथ सबसे बड़ा डर सर क्या वो है? टूट ना जाए। जल्दी बोलो। सर बेस स्ट्रांग बोलो, होना चाहिए। माइक ओपन करो। स्ट्रांग होना चाहिए, बट क्यों? क्या हो जाएगा जो बेस स्ट्रांग होना चाहिए? सर कोलैप्स सर नहीं तो गिर जाएगा पूरा जो कोलैप्स, स्ट्रक्चर। गिर जाएगा। आर्किटेक्चरल डिजाइन के खिलाफ सबसे ज्यादा काम करने वाला दुनिया का एक फोर्स है, जो फोर्स पूरी दुनिया चलाता है, ग्रेविटी। यानी आप जो भी चीज डिजाइन करोगे वो टेक्निकली सही होना चाहिए। तुमने तो खूबसूरत बना दिया, पता चला वो बना और वो गिर गया, ये गलत आर्किटेक्चर होगी। सो आर्किटेक्ट इज द पर्सन हु इज गोइंग टू डिजाइन, sketch a construction and make sure that it is beautiful, aesthetically appealing and technically correct. Clear? यस सर। NDA, National Defense Academy. If you have interest to serve the country, to protect the country, go on the borders, fight for the country, you know, then NDA is the right field for you. What is NDA? National Defense Academy. It's an academy which is based out of Pune, Khadakwasla. किसी ने वो फिल्म देखी है अजय देवगन की, जिसमें अजय देवगन है और सोनाली बेंद्रे है? बहुत पुरानी फिल्म है, शायद तुम पैदा नहीं होते, लेकिन शायद कभी ना कभी तुमने सुना हो गाना। ये गाना सुना है तुमने? वो गाना है ना, अकेली ना बाहर जाया करो नजर लग जाएगी। कितनों ने सर, सुना है? मैंने सुना। गिरीश ने सुना है? It's this song, अकेली ना बाहर जाया करो नजर लग जाएगी। सुना है किसी ने? Yes. यस सर। Yes. Now it's a very beautiful song, you know. उस वो एक मूवी है, सर्च कर लेना, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी, बट उस मूवी में अजय देवगन को एनडीए एकेडमी के अंदर दिखाया है। ही इज वर्किंग विद इंडियन आर्मी, ही इज बेसिकली लर्निंग विद इंडियन आर्मी, दैट्स एनडीए। दूसरा एनडीए का रिप्रेजेंटेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज इन द मूवी लक्ष्य, एक बार चेक कर लेना, जहां पर ऋतिक रोशन गोस फॉर द ट्रेनिंग फॉर इंडियन आर्मी। सो दैट्स एनडीए, where you get prepared to join Indian Army, Navy and Air Force on the position of an officer, and you start as a lieutenant. You don't start as on the lower position, you start on the lieutenant. Not an easy exam, but yes, अगर NDA क्रैक कर सकते हो then तुम्हारा डिफेंस का सपना पूरा होगा। CPL, commercial pilot license. No doubt, if you want to be a pilot, you will take up science, physics and maths mandatory subject होगा. You need to have a license in order to fly a plane called as commercial pilot license. अगर आपको proper plane उड़ानी है, then you should have at least an experience of 200 hours of flying. अगर आपको international airlines में plane उड़ाना है, तो you should have an experience of 750 hours of flying. Now, in order to get this experience, you'll have to learn flying. To learn flying, तुम्हें 11th 12th में physics और maths को पढ़ना होगा. Obviously, chemistry by default आ जाएगा. Then you'll have to clear certain entrance exam to get into a flying school. For example, one of the best flying school in the country is Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy, Rajiv Gandhi, flying school, Bombay Flying Club, Nagpur Flying Club, Madhya Pradesh Flying Association. These are some amazing flying institute where you can take admission and learn flying and increase your number of hours and then apply for the license and become a pilot. Merchant Navy. Merchant Navy. What is Merchant Navy? The word merchant with navy. Merchant का मतलब है बिजनेस, धंधा। तो एक नेवी इंडियन नेवी होती है जो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, एक होता है मर्चेंट नेवी जो पानी के जरिए बिजनेस करता है। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज दिस? नाउ लेट्स से कि आपको बहुत बड़ा कंसाइनमेंट ऑफ कार्स जो है जर्मनी से इंडिया लाना है। ट्रेन से लाओगे क्या? No. बताओ। नहीं। प्लेन से ला पाओगे? इतना पैसा है कि प्लेन से लाओगे कार इतने सारे? नो सर। कैसे लाओगे? शिप से। सो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिप ट्रैवल करती है बहुत बड़ा कंसाइनमेंट लेकर के, इसे कहते हैं मर्चेंट नेवी। शिप के जरिए कंसाइनमेंट्स को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पहुंचाना। तो उस शिप के बिजनेस को ऑपरेट करना, उस शिप पर मैनेज करना, उस शिप के इंजन को ड्राइव करना मर्चेंट नेवी के अंदर आता है। मर्चेंट नेवी में भी दो वर्टिकल होते हैं, एक होता है डेक और दूसरा होता है इंजन।
डेक वाले मर्चेंट नेवी के सरफेस पर होते हैं, शिप के ऊपर, वो सफेद कपड़ा पहन करके, टोपी पहन करके। ये लोग इंश्योर करते हैं कि सामान सही तरह से लोड हो, सही तरह से अनलोड हो, सही डायरेक्शन में जाए, प्रॉपर नेविगेशन हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो। जो शिप के अंदर इंजन रूम्स होते हैं, वो होते हैं इंजीनियर्स, मरीन इंजीनियर्स, जो मर्चेंट नेवी में आते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि शिप का इंजन चलता रहे, क्योंकि सफर बहुत लंबा है। अगर इंजन नहीं चला तो हार्ट ऑफ द शिप है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर एक शिप में इंजन नहीं चला और आप ओशन के बीच में हो तो क्या होगा। क्या ये पांचों फील्ड का आपको एक मोटा मोटी अंदाजा लगा? Yes. Yes, sir. ब्यूटीफुल। नाउ इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे सामने 1 to 1 बैठना और अपने इंटरेस्ट को फिगर आउट करके डिटेल में जानना सब कुछ। कमिंग बैक टू मेडिकल, डॉक्टर, one of the most noble profession you will ever get to know, a profession that will bring a lot of respect and satisfaction in your life, because यहाँ पर आप कोई स्टील नहीं बनाते, यहाँ पर आप कोई कार नहीं बनाते, बट यहाँ पर आप लोगों की जिंदगी बनाते हैं। You cure people who are ill, who are sick. You save life of people who may die because of their injury and because of their disease. A very noble profession. Doctors are treated like gods. There are various ways in which you can become a doctor. MBBS, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. These are the most recognized and the topmost people in the medical field when it comes to becoming a general physician. एक डॉक्टर बनने के लिए, मैं स्पेशलिस्ट की बात नहीं कर रहा, स्पेशलिस्ट बाद में बने, लेकिन नॉर्मल डॉक्टर बनने में ये टॉप मोस्ट फील्ड मानी जाती है। दे प्रैक्टिस एलोपैथी यानी इंग्लिश मेडिसिन। Then you have BAMS, Bachelor of Ayurvedic Medical Studies. You have BHMS, you have BAMS. Now these are different fields through which you can become a doctor. It depends कि उस फील्ड का ओरिजिन कहां से है। जैसे MBBS का ओरिजिन इज फ्रॉम इंग्लिश मेडिसिन, BAMS का ओरिजिन इज फ्रॉम आयुर्वेदा। सो इट डिपेंड्स कि उस फील्ड की ओरिजिन कहां है जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। बट ये सभी लोग जनरल फिजिशियन कहलाएंगे, जहां पर आप अपने नॉर्मल मसलों को लेकर जाते हैं, खांसी से लेकर, बुखार से लेकर, सर दर्द से लेकर पेट दर्द तक। ये स्पेशलिस्ट नहीं होते। तो अगर आपको दिल का दौरा पड़ा है तो आप इनके पास नहीं जाएंगे, उसके लिए आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। बीपीटी, फिजियोथेरेपी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है डॉक्टर एक्सरसाइजेस के थ्रू दूर करते हैं। बीडीएस, डेंटल, दांतों के अलग डॉक्टर होते हैं, इनकी पूरी साइंस अलग चल रही होती है। नर्सिंग, दे आर नॉट डॉक्टर्स बट यस दे आर असिस्टेंट्स टू डॉक्टर्स। ये सारे कोर्सेज में एडमिशन होता है नीट एग्जाम के जरिए। सो नीट की तैयारी इसके लिए बहुत जरूरी है। फार्मेसी, फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी इज स्टडी ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर नहीं है आप, बट आप दवाइयों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब दवाइयां बनी किन चीजों से हैं? दवाइयां बनी है केमिकल्स से। अब केमिकल्स क्या हो सकते हैं? व्हेन वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट केमिकल्स, सो हम जब कोई भी दवाई उठाकर देखते हैं तो उसमें पीछे सॉल्ट्स के नाम लिखे रहते हैं। कभी क्लोराइड लिखा है, कभी पैरासिटामोल लिखा है, कभी न्यूमेसालाइड लिखा है। बहुत सारी मेडिकल दवाइयों के, अजिथ्रोमाइसिन होती है, बहुत सारी चीजें लिखी रहती है। उन केमिकल्स के बारे में पढ़ना जिससे दवाइयां बनेंगी इज कॉल्ड एज फार्मेसी। Diploma in pharmacy is a small 2 years का course, whereas bachelor's in pharmacy is a 4-year course. Diploma in pharmacy वो लोग करते हैं जो सिर्फ एक मेडिकल की दुकान खोलना चाहते हैं। Bachelor in pharmacy वो लोग करते हैं जो मेडिकल की दुकान भी खोल सकते हैं, बट किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या किसी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे सन फार्मा, ग्लेन फार्मा, लाइफ साइंस, बायोटेक, Biotique, there are many medicine manufacturing company in the world जहां पर वो काम करना चाहते हैं। They are pharmacists. So these are the most popular fields in science. There are many others. इसके बाद बहुत branches खुलेंगे, but हम सबके बारे में एक बार में बात नहीं कर सकते। Then in that case, if any of these interest you, और तुमने अभी तक साइंस नहीं लिया है and you're planning to take one, मोस्ट वेलकम। आओ मुझसे पर्सनली मिलो, अपनी फील्ड डिस्कस करो। मैं तुम्हें पूरा 8 साल का करियर मैप बना करके दिखाऊंगा। आई विल गिव यू विजन एंड वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल टीम फॉर द प्रिपरेशन। ये हमारा मोस्टली लास्ट बैच हो सकता है, 2 दिन के अंदर स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कल आखिरी डेमो खत्म हो जाएगा।
If you are taking up science, you're most welcome. Come join us, start preparing. You're most welcome at IIT and Science Point. We're located at 4 locations. We have 2 centers in Bhayandar East, we have 1 center in Bhayandar West, and we have 1 center in Mira Road. अगर आप CET की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारे जरिए पढ़ते हैं तो आपको CET का एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है, बिकॉज हम आपका कॉलेज में एडमिशन डायरेक्ट कराते हैं. कैसे होगा कैसे नहीं होगा is something that we will discuss 1-to-1. I hope you all enjoyed this session. Can you please, just Yes. send me a comment, and a comment में भेज सकते हो. On a scale of 5, 5 out of 5 will mean excellent, 1 out of 5 will mean poor, 3 out of 5 will mean average, 4 out of 5 will mean good, 2 out of 5 will be like okay. So start giving me rating out of 5 in the comment box. Be open, ऐसा कुछ नहीं. You can give me 1 as well. I don't have a problem. डर के मत देना, बिकॉज मैं कुछ करूंगा नहीं तुम्हें. Go ahead, go ahead. Okay, all right. Okay, so as I can see, most of you have found this session to be excellent. This is how interesting I will make physics for JEE preparation. So in that case, most welcome to join. आपको मैं यहीं पर हमारा एड्रेस भी दे देता हूँ. Now तुम मुझसे मिलने कहाँ पर आ सकते हो, मैं तुम्हें ये बता दूँ. Admission point of view से, you can find me at the head office of IIT and Science Point. You write IIT and Science Point on Google, and you will find the address. That's the head office, which is on Navghar Road, Bhayandar East. आप भले मीरा रोड में पढ़ो या भाईंदर वेस्ट में पढ़ो, एडमिशन के लिए आपको मुझसे मिलने भाईंदर ईस्ट आना होगा. You're most welcome to come. 2 दिन में बैच स्टार्ट हो रहा है, पेरेंट्स के साथ आइए, मिलिए एंड एडमिशन को कंफर्म करिए. I hope you enjoyed the session. Thank you so much. In case you have any doubt, you can stay back, ask me. In case you don't have any doubt, then you can start exiting. I hope तुम सबने फॉर्म भर दिया. Aniket, any doubt? Arsh? श्रावणी, बड़ा आज बेटू या? अरे श्रावणी ने sir. बड़ा प्यारा सा कमेंट किया, मैं देख लूं जरा. कभी तारीफ सुनना अच्छा लगता है. सर, दिस इज द बेस्ट फिजिक्स लेक्चर आई हैड एवर अटेंड. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. लॉकडाउन में तारीफें सुनने बहुत कम मिलती है, सो अच्छा है सुनने मिला. सो चलो देन, आई विल बी क्लोजिंग द सेशन. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर. श्रावणी, आज शाम तक एक बार मिल लेना बेटा पापा के साथ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर. Bye, sir. बाय.